जिस तरह आपने कहा कि जो एक सारे कम्युनिटी को इक्वल पावर देने के लिए ये बना है Just a कास्ट second. I सिस्टम। think. Hello. हेलो। Yes, Sumit, your voice is audible. Okay. हाँ हाँ हाँ। But मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। हेलो NCP, हेलो। could you repeat again? हाँ, जिस जिस तरह आपने कहा था कि सभी कास्ट को मतलब इक्वल पावर देने के लिए, मतलब एक बैलेंस रखने के लिए ये कास्ट सिस्टम बनाया गया है, आपने जब जिस तरह कहा है। लेकिन ये बात आप भूल रहे हो कि जहाँ पर जिस जिस कास्ट का मेजोरिटी ज्यादा रहता है उसी कास्ट का थोड़ा मतलब पावर मिसयूज होता है। ये भी हुआ है इंडिया में, बहुत सारे क्राइम इस बेसिस पर ही होते हैं, जहाँ पर जिनका मेजोरिटी ज्यादा रहता है जिन कास्ट का, वहां पर उन्हीं का वही वही दूसरों I'm not पर। able to hear you. Please. Okay, I think you can hear me through the phone. So what NCP is willing to say is, Sumit, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, अभी आ रही है। तो what NCP is willing to say is, आपने जैसे कहा कि based on the characteristics or strength of each individual, हमने उनको ग्रुप करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया है, which was the purpose of caste system. लेकिन that has been abused and being abused by people of higher category, those who have got certain level of authority. So अगर what NCP is wanting to know is or trying to imply is, this is not just a means of categorization, this is a means of imposing authority on those who are not able to get subdued or defend themselves. तो उस बेसिस पे आपको क्या कमेंट करना है? Can you repeat the question? Sure. So what he's trying to say is, we are now grouping people based on the strengths and categories, right? जैसे कि आपने initially कहा कि एक IAS हो गया या फिर a person who has got certain level of degree, हमने उनको एक ग्रुप में एक कैटेगरी में रख दिया based on the strengths. लेकिन it is not uniform in nature is what NCP is saying, and this is being used to impose people's ideas on those who are inferior in nature. तो उसमें आपको क्या कमेंट करना है? I personally feel कि it should not be on a group level. I personally feel regardless of any caste. In today's scenario, regardless of any caste, we should support a talent to pull the person. Regardless of any status, economic conditions, we should support the talent to break the chain of this, this modern caste system, I'll say. And second thing, being a Hindu, when someone tell you from another religion that this is the evil you guys have. Actually, why I want to speak over here is like, I just want everyone to have an answer why this caste system has been introduced and why it is necessary. So basically, मतलब इतना है कि एक उम्र के बाद जब आदमी एक स्टेटस पे पहुंच जाता है जिसमें वहां पे ग्रोथ नहीं कर सकता, तो उसका एक लेवल हो जाता है, या कह लीजिए उस जमाने में आज से 1000-2000 साल पहले नहीं कह सकते थे कि एंटरप्रेन्योरशिप नाम की इतनी डीप चीज थी। बट हाँ, अभी तो कभी भी कोई भी आदमी अपना स्टेटस चेंज कर सकता है मेहनत करके। बट प्रैक्टिकली हमको लोगों को हीन भावना से ना देख के उनको सपोर्ट करना चाहिए, यही मेरे कहने का मतलब है। बट होता क्या है कि लोग इतना डीप चले जाते हैं अपनी स्टेटस में और अपने कैपेबिलिटीज में कि उनको ये लगता है कि यू नो there no one should be comparable with them, and also as a community, as a person, we should support anyone, like any person. It should not be like from any of the caste. We should support, as a common man, we should support each other, against powerful people. So that's what I want to say. As a common man, we should support each other, against any powerful person.
That is also one of the thing I want to tell you guys. थैंक यू तो सुमित होता क्या है कि पावरफुल आदमी अगर किसी आम आदमी को मार रहा है तो मोस्टली चार आम आदमी पहले मुंह फेर के निकल लेते हैं. जी एनसीपी डज इट आंसर योर क्वेश्चन नाउ I hope I have answered the question. हाँ 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 वही तो मैं सुनना चाहता कि अगर सोचे Shri? अगर अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुआ था कोई एक आईआईसी जो कि हेलो या एनसीपी गो अहेड हेलो उत्तर प्रदेश में एक आईआईसी था जिनका मीना नाम का था जिसने एक ब्राह्मण परिवार को उठाया क्योंकि एक झगड़ा हुआ था ब्राह्मण और एक दूसरे कास्ट के बीच में तो उसने ब्राह्मण कास्ट के उस परिवार के जितने सर मर्द थे उनको उठा लिया और जेल में लिया और बोला कि अपना वो निकालो वरना मार खाओगे उन्होंने निकालने से मना कर तो उनको तो खूब सा पिटाई किया तो ऐसा होता है ना पावर मिसयूज हो जाता है क्योंकि एक आईआईसी बन गया है एसटी का तो वही करेगा दूसरे के तरफ सब जी एनसीपी सुमित आपको सुनाई दिया वो सुमित were you able to listen No, I'm not able to listen. Okay. So NCP was basically agreeing with what you just said about the misuse of power. He was quoting an example from. Shri, I think I'm not able to hear you too. Are you able to hear me now? Shri? सुमित आपको शायद ईयरफोन लगाना पड़ेगा आप किसी पार्टिसिपेंट को सुन नहीं पा रहे इस वजह से Oh, is it so? जी देखना पड़ेगा. Just a second. मीरा, वो मेडिसिन वाले डिब्बे से ये फोन ले आओगी जरा. Meanwhile, guys, Prabhu has raised his hand. Apart from him, if anyone wants to add something or has any question, you can please raise your hand. I'll reach out to you and you can unmute yourself and ask the question to Sumit. Okay. Can you? Are you able to hear me? जी आपकी आवाज आ रही है आप मुझे सुन पा रहे हैं Hello. सुमित आपकी आवाज आ रही है आप मुझे सुन पा रहे हैं हाँ मैं सुन पा रहा हूँ बट ऑन फोन. नहीं मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपका म्यूट दिखा रहा है मुझे. अभी Yeah, now it's fine. But अभी सिस्को से सुनाई सुनाई जा रही है anyway, no issues. You can communicate from home itself. You can convey the message. Okay Sumit. So guys, if you have anything to add or if you have any question, you can put it over here so that I can communicate it to Sumit over phone because he's not able to hear from Cisco. Prabhu, I guess you can go ahead and unmute yourself. Sumit, Prabhu has a question. What's it? Hi, Sumit. Hey, hi. Yeah, you're audible now. So, my basic the scenario, the caste system is needed or not needed? It's needed. First question is that. It's needed. It's needed. And why? Actually, it's needed. Simple answer. Yeah, it's needed, but in a different format. Not as a Brahmin, not as a Thakur, not as a Kayas, not as a SCST or anyone, not as OBC, but in a different. I think it should be based on. I think it should be based on the financial status.
personally what I feel. But it shouldn't be something where we are harming each other. There is a need against evil, not against good. Okay, Sumit, Yeah. just a thing. Like, जैसे एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे हम ब्राह्मण हैं, ठीक है? कोई एससी वाला बंदा करा के तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ कि मैं मंदिर में पूजा कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये कहीं लिखा है क्या? तो फाइन, हाँ, कहाँ लिखा है? वेद में। Sure. क्योंकि आपको वेद पढ़ने के लिए जनेऊ धारण करना नहीं जरूरी। लेकिन केरला के एक टेंपल में आई थिंक एक SC/ST पूजा करता है। सुनिए, वो डिफरेंट सिनेरियो रहते हैं। जैसे हमारे गांव में वहाँ पे ऐसी पूजा कर सकते हैं, तेरे स्पेसिफिक कास्ट सिस्टम आप जो कह रहे हैं फाइनेंस के बेसिक्स पे, वो एक लेवल तक ठीक है। मतलब पहले हमारा जो था वो फाइनेंस बेसिक्स पे ही था। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जनेऊधारी क्या कोई और कास्ट का बंदा नहीं बन सकता? मैं कहता हूँ मैं कास्ट हूँ। आपको बन सकता है, लेकिन उसके लिए लेकिन उसका पास्ट लाइफ को उसका मतलब को पूरा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हिंदू से शादी कर सकते हैं। शादी करने के बाद वो अगर बोलेगा कि मैं अल्लाह को भी खाएगा तो वो तो नहीं आएगा हिंदू तो बन के रहेगा। हिंदू बन कर लेगा। तो कुल मिला के मतलब बेसिकली देयर इज नो ब्राह्मण, देयर इज समवन हु हैज हैड दैट टैलेंट, राइट? Yes. दैट्स व्हाट आई थिंक, टैलेंट एंड फाइनेंस। हाँ, मैंने पहले भी बोला था टैलेंट एंड फाइनेंस। देखिए फास्ट को नहीं जा सकता। देखिए डेफिनेटली कुछ नियम होते हैं हर एक प्रोफाइल के एल से, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे कोई भी। लेकिन और ये भी है, देखिए अब आपको ये मैं बोलूं कि अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, ठीक है, मेरे भी एक नियम है, मेरी भी एक लेट्स से कुछ एक डिसिप्लिन है जो मुझे फॉलो करने ही करने हैं। तो वो तो हर प्रोफाइल के लिए होता है, बट ये कहना गलत होगा कि ये बंदा ये नहीं कर सकता। हाँ हो सकता है उसके मस्तिष्क की वो कैपेबिलिटी ना हो, बट अगर वो कैपेबिलिटी उसको शरीर में है तो डेफिनेटली कर सकता है, चाहे वो SC/ST हो जन्म से। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि लाइक इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। अगर कोई बच्चा तेज है इवन दो SC/ST है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन समाज में जो है ना वो कर्म के बेसिक्स पे आधारित है। जाति सिस्टम तो मैं नहीं समझता कि हमने डेवलप किया है कि दूसरे में आके हमारे ऊपर इसको। महाभारत में भी जाति सिस्टम था, इसके वजह से कर्म को पढ़ाई करने नहीं दिया गया। आप तो ये जानते हैं। वही मैं बात कह रहा हूँ ना, जो ताकतवर हो गए उनको अपनी ताकत बना के रखनी, कोई टैलेंटेड ऊपर ना आए। जैसे अगर सबको अपना निकल के मतलब जाति से निकल के इंडस तो कर्म को चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल जैसे हो गया। वो तो सर ऑब्वियस है, वो तो डेफिनेटली किसी के लिए भी ऑब्वियस है। अगर आप ये सोचो कि आप प्रधानमंत्री हो और बैठ के आप मतलब, चाहे चलिए मैं मुझे ले लीजिए, इतना बड़ा पद हर एक से नहीं बोला जाता, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, और अगर मेरी अगले हर दूसरे दिन किसी के साथ फोटो आ रही है तो वो तो नहीं हो पाएगा, राइट? नीड अ रिसेंसी। बट हाँ, किसी को ठप्पा लगा देना कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम इस लेवल के आदमी हो, मुझे नहीं लगता भगवान के अलावा किसी को ये राइट है। किसी इंसान को तो राइट नहीं है, चाहे वो किसी भी कुल का है। ये तो हमने अपना पावर के बेसिक्स पे बना दिया है, लेकिन हाँ उनके ऊपर ये रूल रहना चाहिए। अगर एक ही लाइन तुम चूज करो, अगर तुम्हें ब्राह्मण बनना है तो तुम जने अपने कास्ट को चूज मैं करो। एक्चुअली इस तरह से कहूंगा सर इस चीज को, उनके ऊपर नहीं, ये किसी के भी ऊपर होगा, सबके ऊपर किसी के भी ऊपर।
चाहे वो इवन ब्राह्मण भी है, क्योंकि मेरे ब्राह्मण बहुत फ्रेंड्स हैं, सब चिकन खाते हैं, लेकिन वो उनको जब बुरा मत मानिएगा, घर आते हैं तो पूरा नियम क्या कहते हैं ब्राह्मण वाला होता है। डजंट मीन दैट, राइट? ये तो धोखा हो गया, किसको धोखा दे रहे हो? लेकिन मेरे कई फ्रेंड ऐसे भी हैं जो SC ST हैं, लेकिन उनके घर में मैं जाता हूँ तो शायद नॉनवेज की नाम की चीज भी नहीं होती, वो उनसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो मैं किसको ब्राह्मण दूं? देखिए उस चीज में तो ये तो वही बात होगी, ब्राह्मण का टैग लेना है, इसलिए मैंने मेरे बाप का ब्राह्मण था, मुझे टैग लेना है, समाज में कहना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कायस्थ हूँ, और कर्म मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे आप ब्राह्मण ही बुलाओ। नहीं, उसके लिए सर्टेन रूल रहता है। अगर तुम्हें पूजा करना है तो He's audible. चिकन। हेलो, Hello. मैं audible? हाँ हाँ बोलिए, हाँ ये और ऑडिबल, completely audible। Actually, my name is Kaushik, and मेरा मानना है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र, ओके, अकॉर्डिंग सनातन धर्म, हमारे 4 कैटेगरीज हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों कैटेगरीज में से जो 3 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, अभी तो नहीं है, लेट मी हेलो। धारण कर कौशिक सकते हैं। कौशिक आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सुमित कुड नॉट हियर यू एट फर्स्ट। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिंदू, according to Sanatan Dharma, there are basic categories. Is it audible? Is it audible right now? No, your voice is echoing. Okay. हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, Not to me. Yeah, Kaushik, go ahead. Not Your to voice me. is audible. yeah. Not to me. Again, I'm repeating, not to me. Okay, Sumit, I'll repeat the question. Sure, sure. हाँ, तो according to Sanatan Dharma, so there are 4 basic categories of caste, which has been mentioned in the Veda itself. Now, people should in 4 basic categories: Brahman, Vaishya, Shudra, and Kshatriya. Okay, the first 3 categories like Brahman, Kshatriya, and Vaishya are actually authorized to take जनेऊ. ऐसा कोई है नहीं, मतलब ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि वो लोग जनेऊ धारण नहीं कर सकते, बिकॉज श्री राम बिलोंग्स टू क्षत्रिय धर्म. ओके, श्री राम का भी जनेऊ था. ओके, एंड श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण ने भी जनेऊ धारण किया था. तो वहां पे एक और मतलब अगर आप See, I have पहले का 5 minutes left out. आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे? हेलो, I have 5 minutes left out. So. Kaushik, if you could wrap your question in a summarized way, it would be better because Sumit has to leave after 5 minutes. मैं सीधा कंक्लूजन में ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे 3 कैटेगरीज हैं कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, तीनों के तीनों ऑथराइज्ड है जनेऊ धारण करने के लिए. एंड इट्स अप टू यू वेदर यू आर गोना हैव जनेऊ और नॉट. ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप शूद्र को छोड़ के, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शूद्र, क्योंकि शूद्र को इसमें भी बताया, मतलब वेदों में भी बताया गया है कि it is not authorized because it is been clearly mentioned in Yajurved and Samved. Okay, Kaushik. Thank you, Kaushik. So I'll pass this on to Sumit. Sumit, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है. So Kaushik ने ये what he was trying to imply is we have got, I mean, in our scriptures it is specifically mentioned that 3 of the categories, Brahmin, Vaishnav, and Kshatriya, have the ability or pass to take the role of. I'm sorry, someone is saying something in the between.
जी तो कौशिक ये बोल रहे थे कि ब्राह्मण वैष्णव और क्षेत्रीय जेएनयू धारण कर सकते हैं, ये उन पे टोटली डिपेंडेंट है, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि सिर्फ आप ब्राह्मण हैं या वैष्णव हैं या क्षेत्रीय हैं तो ही आप धारण कर सकते हैं. इट इज ऑल ऑन द इंडिविजुअल. Okay. Yeah, so that is what he was trying to imply. He wants to say that only these three can. Which three he said? Brahmin, Vaishnav and Kshatriya. Okay, rest cannot. Rest he did not mention as it is not mentioned in our scriptures. Okay. And it is purely on the individual if he wants to do that. Any reason has been written in the scripture why only they can? Kaushik, so Sumit has a follow-up question. He wants to know if any particular reason has been mentioned in the scriptures why only Yes, these three. there are multiple reasons because एजुकेशन पहले के जमाने में क्या हुआ करता था ना, वो लोग पहले के जमाने में कोई कास्ट सिस्टम था ही नहीं. ओके, तो वहां पे क्या किया जाता था, जैसे कि वहां पे पहले एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, मतलब जो जैसा है उसको एजुकेशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर युद्ध कला में अच्छा है, रणनीति में अच्छा है, ओके. Voice is actually, I'm sorry to interrupt you. Your voice is echoing. Kaushik, speak now. Your voice was echoing. Kaushik, are you there? प्लीज गिव मी 2 minutes, लेट मी सेटल डाउन. लाइक अभी थोड़ा सा बाहर से आके पहुंचा हूं मैं. प्लीज 2 मिनट में आपको आंसर सारे देता हूं, तब तक आप डिस्कशन करते रहिए. ठीक, sure. Nikhil, you have raised your hand. Please go ahead with the question or any suggestion you want to add. निखिल, आवाज आ रही है? Okay, I think कास्ट सिस्टम पहले नहीं था, ये अब हिंदुओं के ये कैंसर बन चुका है. अब इसको मुझे गुड़िया को देना तो दे दो. फर्स्ट और ये कास्ट सिस्टम नहीं था, ये वर्ण सिस्टम था. वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम में बदल दिया. वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण का बेटा बिजनेसमैन बन सकता था, वो क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय बिजनेसमैन बन सकता था. उसके काम पे ये डिपेंड करता था कि वो क्या चीज है, ये डिवीजन होता था. ये नहीं होता था जैसे ये लोहार है तो लोहार क्यों लगता है. अब कोई भी जैसे अपना काम का डिवीजन होता था हमारे पूरे देश में, तो सबका अपना अपना एक उसका स्ट्रक्चर होता था कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये एक्सपर्ट है, इसलिए ये होता था. एब्सोल्युटली मैं यही तब से बोलना चाह रहा था. ये एजुकेशन सिस्टम. Just a second. Let me pass this on to Sumit, and then you can take it forward from there. Sumit, आवाज आ रही है? ओके. तो निखिल ने एक कमेंट किया है कि हमारे धर्म में कास्ट सिस्टम पहले था नहीं, वर्ण सिस्टम था, जिसमें एक आदमी के काम के बेसिस पे उसका जो हेरिटेज है या फिर उसका जो इनहेरिटेंस है वो पास किया जाता था. तो एक ब्राह्मण का बेटा है, he can be a businessman based on his deeds and based on his work, not based on what his. Just a second, let me unmute you. हाँ सुमित बोलिए अभी. That's what I'm saying. It should be based on talent. It was based on talent. Whether you call it one system or caste system, whatever. Right. Okay, Kaushik, you wanted to add something. कौशिक, आप लाइन पे हैं? हाँ जी, हेलो. तो पहले के जमाने में करता था कि मतलब पहले बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था. मतलब उन लोगों को पहले अपने पेरेंट्स से दूर करके गुरुकुल में 18 इयर्स की शिक्षा दी जाती थी. तब के जमाने तो इंजीनियरिंग साइंस वगैरह कुछ था नहीं, तो वो लोग पहले आप लोगों को ज्ञान देते थे. मतलब 17 इयर्स में वो लोग आपको वेद पढ़ाते थे. अगर आपको वेद इन द सेंस आप कला, ओके, आपको 64 कलाओं में से कोई भी 64 में से 64 कला
वो नहीं हो सकता. ओके, हाँ, like you और cannot कुछ be an engineer at the same. Is it audible to me? Is it audible? Hello. या कौशिक, you're audible. हाँ, तो पहले के जमाने में ये होता था कि आप लोगों को पहले गुरुकुल भेजा जाता था, आपको 64 कलाएं दी जाती थी, एंड यू कैनॉट बी अ मास्टर इन ऑल द 64 स्किल्स. तो इसीलिए आपको पहले टेस्ट किया जाता था. जैसे कि आपको मैं महाभारत का एग्जांपल देता हूँ. महाभारत में जैसे कि जो चीज अर्जुन को दिखा, मछली की आंख, चिड़िया की आंख, वो चीज भीम को नहीं दिखा, वो चीज युधिष्ठिर को भी नहीं दिखा, जबकि युधिष्ठिर बड़ा था, या युधिष्ठिर भी सेम कुल से था एंड ये भी सेम कुल से थे, पर वो अर्जुन को ही क्यों दिखा? इसीलिए अर्जुन को धनुर्धर बनाया गया. ओके, पर यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे परशुराम भी है. हेलो. या कौशिक. यहाँ पे परशुराम भी है. परशुराम के पास वैदिक ज्ञान भी है, शस्त्र ज्ञान भी है. ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ वो क्षत्रिय भी हैं. तो दिस इज द थिंग, मतलब हम ये जो कास्ट सिस्टम है ये हम लोगों ने ही बनाया है, पर जो एक्चुअली कास्ट सिस्टम को वर्ण सिस्टम को मैनिपुलेट जब किया गया तब ये कास्ट सिस्टम बना है. इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन रिटन इन द वेदास. ये पूरा का पूरा आपका कर्म है. लाइक व्हाट यू आर डूइंग, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ जो होगा आपका, आप उसी फील्ड में जाओगे. अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग में जाओगे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं. अगर आपका बायो अच्छा है तो आप मेडिकल फील्ड में जाओगे. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. ये कास्ट सिस्टम इसीलिए बना दिया गया है क्योंकि पहले के जमाने में जब जमींदार हुआ करते थे, जमींदार के टाइम में, मतलब मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब हमारे जो फोरफादर्स थे, तो जमींदार मतलब कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे कि अगर कोई कम छोटे जात का है तो वो आपके सामने से भी नहीं जा सकते. ये मेरे गांव में भी हुआ है. ये मैंने बहुत बारी मतलब ये बात सुनी भी है. देन मतलब ये भी है. तो ये सारे के सारे स्किल्स आपके. तो ये जब जब फिर लोग डोमिनेट किए. ओके, जब आपका जब स्ट्रेंथ बढ़ा, धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ आप लोगों का बढ़ जाता है तो फिर वो माइनॉरिटीज को दबा देते हैं. ओके, तो यही चीज हुआ फिर लास्ट में. वरना पहले गुरुकुल में शिक्षा सबको दी जाती थी, सबको सबको शिक्षा का अधिकार. जी कौशिक. सुमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड, लेट मी अनम्यूट यू. सो सुमित, व्हाट कौशिक implied was, हमारे जो जी, हमारे बैक व्हेन वी यूज्ड टू हैव गुरुकुल्स एंड ऑल द वैदिक स्कूल्स, हमारे उस टाइम पे 17 साल की एजुकेशन सिस्टम, आई मीन 17 years students were being taught the same way irrespective of the caste or creed they belong to. And महाभारत जो हुआ, जिसमें we had specific people owning up specific roles. अर्जुन हो गए, भीम हो गए, युधिष्ठिर हो गए, based on their dates and based on their work. And that is maligned in such a way that अभी लोगों को उस चीज को यूज करके डिवाइड किया जा रहा है based on a tag like you mentioned in the first as well. So to summarize, it is all based on an individual's dates. एक इंसान का जो कर्म है, जो काम करने की शक्ति है, उसी को लेके ये पूरा बेस्ड है. एंड एक इंडिविजुअल का जो काम करने का शक्ति ही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, एंड उसके फ्यूचर के जो lineage है, heritage है, that will be decided based on what he worked and how he worked. This is what Kaushik wanted to imply. That's great, and that's a truth also. But do you guys really think कि कमी हम में नहीं थी, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया? मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा. ये आपको थोड़ा शायद सा आपके नाम अलग हो सकते हैं, मैं कास्ट सिस्टम बोल रहा हूँ. मैं मेरे कहने का मतलब सिंपल है. हम कहते हैं कि हमें बाहर वालों ने डिवाइड कर दिया. क्या ये सच नहीं कि हम ऑलरेडी डिवाइडेड थे बेस्ड ऑन आवर स्टेटस, एंड वी आर डिवाइडेड टू मच? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि आज भी है काफी हद तक. इसी चीज का फायदा लिया काफी है हद तक. अंग्रेजों ने. एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस.
So I क्योंकि think we should work on a practical thing, which is a current truth, and we should tell like till what date, was there, it's gone. See, can you hear me, right? You can Yeah, hear me. yeah, yes, we can hear you. Sumit, I think we Okay. can take one more comment if it is fine for you. One more question. Okay. ले लेता हूँ लेकिन शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ. Acha, guys, we have a hard stop at 7 as Sumit has to leave. Okay, user, if you could unmute yourself, आप सवाल पूछ ले, मैं सुमित को पास ऑन कर लूंगा. Hello, Yes, you're audible. am I audible? Okay. So I want to add a point actually. So when we say caste, it is about kul, right? Usually, when we synonym. So Kaushik told about Sri Ram and Krishna. So when we talk about Sri Ram's kul is actually Surya kul, Ravi kul, you can say. So his lineage goes through Surya god, and Krishna's kul is Yadu kul. Yadu is someone in the family lineage. So when we talk about kul, it is about lineage. Who have some people, ancestry people, as called as whose name will reach as a kul. So, but it became jati. ठीक है, ठीक है, So सुमित. yeah, that's my point. So somehow this shift has happened. So what is actually based on ancestry had became based on jati or varna. So this change is what caused this friction now. Okay, I made my point. Thank you so much. May we know your name, please? It won't be appropriate to address you as OK user. Vishwa. Vishwa, thank you so much for making this point. Sumit, आपको आवाज आ रही है? hello. Yeah, Kaushik, just a second. I'm trying to connect to Sumit. Actually, he had to drop off. Okay. Okay. Vishwa, thank you so much for making the point. Kaushik, Nikhil, and everyone else who has raised or added some points. Sumit had to drop off because he has some other priorities. We can continue this discussion for the next 15 minutes. If people want, we can add and have an interactive session ourselves. Yes. मैं ये बोलना चाहता हूँ, रामायण लिखी किसने? गांगी कौन होते हैं? SC/ST. ये जो सो कॉल SC/ST OBC बना के रखा है, और ये मौर्य राज था. मौर्य राज को हम सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू सेलिब्रेट करते हैं. ये किसका था? मौर्य कौन होता है? क्या मतलब क्या से क्या बना दिया है? ये हमारी स्ट्रेंथ थी. एग्जैक्टली यही हमारी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि लोहार बनाता था तलवार, और तलवार से क्षत्रिय लड़ता था. अब तुम लोग का सिस्टम ही टूट गया है. सारी जगह जाओ तो मुसलमानी काम करने को मिलेंगे. कौन सी इंडस्ट्री तुम संभालते हो? कौन सा हिंदू बता सकता है कि अब हिंदू लड़का गवर्नमेंट जॉब दो, ये दो, वो दो? पहले हमारे पास सब कुछ था. सबसे अमीर देश यही था. आई कम्प्लीटली एग्री निखिल, बट हमारे देश के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं, जैसे कि महमूद गजनी का हुआ, जैसे फिर मुगल्स आए एंड ऑल. तो हमारा देश बहुत रिच था. ओके, सोने की चिड़िया कहा जाता था. इसी से अट्रैक्ट होके अंग्रेज आए हमारे पास. ओके, तो यस, हम लोग डिवाइड हुए हैं. बट यहाँ पे जो आपने कहा कि OBC, ST, SC, ये जो कैटेगरीज हैं, दीज आर स्पेशल कैटेगरीज. ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन कैटेगरीज को इसीलिए कैटेगराइज किया क्योंकि ये कैटेगरीज पिछड़ रहे हैं. तो इन लोगों को एक दिशा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान लिया है. ओके,
प्रावधान इन द सेंस कि उनको कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स दिए हैं, जैसे कि हम लोग एजुकेशन राइट्स, क्योंकि ये लोग तो हम लोग तो महाभारत काल से सुनते आ रहे हैं कि लाइक कर्ण भी थे, मतलब सूतपुत्र थे, तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था नॉल। तो ये प्रथा चली आ रही है, तो इसी चीज को थोड़ा सा मिनिमाइज या थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि हम लोगों को उन लोगों को थोड़ा वैसा मतलब कुछ फैसिलिटीज मिले, जो फैसिलिटीज से हम बहुत पहले से इनका लाभ उठा रहे हैं, पर वो लोग इन चीजों से वंचित रहे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ST SC का तो कॉन्सेप्ट पहले था नहीं, क्योंकि पहले भी लोग जाति धर्म, आज भी मतलब पहले क्या, आज भी लोग जाति धर्म देके शादी करते हैं, आई कंप्लीटली एग्री। बट यहाँ पे ये चीज भी होता है, लाइक इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया, बट अगेन सिचुएशन पहले से फिर भी कंट्रोल में है। ओके, फिर भी पीपल आर गेटिंग राइट्स, बट मेरे को लगता है कि ये मेरा मानना है कि आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटस को देख के इन चीज़ों को अभी कैटेगराइज करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसे लोग भी हैं जो लोग बहुत रिच हैं, पर उन लोगों का कास्ट सिस्टम, मतलब वो लोग लोअर कास्ट के हैं, बट दे आर, वो रिच हैं। पर कुछ ब्राह्मण फैमिलीज आज भी हैं, जैसे कि पटना एक ऐसा, मतलब पटना बिहार में, स्पेशली पटना में भी ऐसे ब्राह्मण फैमिलीज हैं, वो लोग एक टाइम का खाना नहीं जुटा पाते हैं। तो ये है मेरा मानना। Right, right, Kaushik. नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन और ये सब, इनको जो प्रोटेक्शन मिला मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने बस इतना बोला कि जो सुमित सक्सेना यस बोल यस रहे थे यस कि ये कास्ट Kaushik, सिस्टम है, ऐसे अच्छी को काम नहीं करने देता है। हमारे कथाओं में उनकी इज्जत सबसे ज्यादा हुई है जिनको विक्टिमाइज किया जाता है, सबसे ज्यादा उन्हीं को माना गया है, उनकी ही पूजा होती है। Nikhil, Kaushik, बिल्कुल। Sumit has joined us for the next 10 minutes. So, whatever questions you have, you can redirect it at him. आप पूछ सकते हैं, या फिर if you want to add something or to comment something like what you were doing right now, you can put that so that I can redirect it to him, and वो आपको वापस से he can give his views. ओके, तो मेरा भी मानना है कि अभी जो ST SC का जो सिस्टम है, मतलब क्योंकि देखिए अभी फाइनेंशियली अगर देखने जाएंगे तो ST भी रिच है और ब्राह्मण भी पुअर है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है। तो मुझे नहीं लगता कि लाइक इसकी अभी, मतलब अगर आप फाइनेंशियली अगर देखेंगे जाएंगे तो ये ज्यादा फायदे में होगा, क्योंकि जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। लाइक अगर कोई बंदा ब्राह्मण होके भी उसके पास अगर एक टाइम का खाने का भी पैसा नहीं है, पर उसको ये ST, मतलब ब्राह्मण जनरल कैटेगरी होने के मतलब फिर कोई फायदा नहीं हो, मतलब उसको नुकसान ही हो रहा है अल्टीमेटली। Right, right, तो okay. मुझे नहीं लगता कि, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये कुछ फायदा Okay, है। let me take that up. Sumit, so Kaushik has one question. I mean, he has an opinion कि अभी फाइनेंशियल स्टेटस को देख के अगर हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो nowadays if you look at, मतलब आप generally if you take out an average, then most of the SC ST people have got more property and more fortune than an average Brahmin. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो रिजर्वेशन SC ST वालों को मिलती है, ब्राह्मण्स उस हिसाब से दे नीड टू गेट मोर, लेकिन उस हिसाब से दे डोंट गेट इट बिकॉज दे बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। तो आपको उसमें क्या ऐड करना है? डेफिनेटली मिलना चाहिए, नो डाउट। तो जी बोलिए। दूसरी चीज एक्चुअली फिर से मैं कहूंगा, we should not call it reservation now because it's a bad word. We cannot reserve a seat for any person, just like we should kind of have a support system. If anybody want to grow, we should have a support system.
तो Sumit, I also had a question. Like you feel that reservation is necessary, but we need to change the format. So like, what is the way forward? How do we achieve it? हम कैसे इस टेम्पलेट को ऐसे चेंज कर सकते हैं जिसमें कि मेरिट के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाए, ना कि आपके कास्ट या फिर आपके जो पेरेंट्स थे उनकी एंसेस्ट्री क्या थी उसके बेसिस पे? Just click the idea what I'm working on. It's my company, Okay. like what I am working on. But I think we need to have a support system for that. That's all I can say. We need to have a support system for a talented people. Okay. Okay, Sumit. Thank you so much for joining the discussion, and I think we'll have to do it again because people have a lot of questions and you have a lot of things to add as well. बाद में फिर से करेंगे. Thank you so much, Sumit, for your time. दे लो क्योंकि मेरे पास अभी 5 मिनट है. Okay. Guys, does anyone have anything else to add? Nikhil? Sorry, 2 मिनट है, 5 मिनट नहीं. Sumit, हाँ. Nikhil, I आप want to address you पूछिए. directly. 5 मिनट नहीं. हाँ, निखिल आप पूछिए. वाल्मीकि रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने. आप जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हो हमारे खिलाफ या फिर किसी के भी खिलाफ, जो कंप्लेंट आप फाइल कर रहे हो, मौर्य राज्य को सेलिब्रेट कौन करता है? हिंदू करता है कि मुस्लिम्स करता है? आप डिवीजन बाद में क्रिएट हुआ है, पहले नहीं था. पहले नहीं था. जब मुगल्स आए हैं और ये सब आए हैं तभी हुआ है. तो सुमित, निखिल का ओपिनियन है कि वाल्मीकि रामायण जैसे वाल्मीकि लिखे हैं, एंड देन देयर आर अदर वर्जन्स ऑफ रामायण एज वेल. तो ये जो बाद में जो डिवीजन आया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये हिंदुओं ने शुरू नहीं किया. इट वाज क्रिएटेड बाय पीपल हु केम टू इन्वेड दिस लैंड. मुगल हो गए या ब्रिटिश हो गए या पोर्टुगीज हो गए, एंड इट इज नॉट स्टार्टेड बाय हिंदूज. सो व्हाई शुड हिंदूज बी द वंस टू सफर? ठीक है, शुरू नहीं किया, चलिए मान लीजिए मैंने निखिल की बात, लेकिन कंटिन्यू किसने किया? पोर्तुगीज ने या हिंदूज ने? हिंदुओं ने. हेलो, जी सुमित, हिंदुओं ने. बस मेरा वही कहना है. तो आप बार बार गलतियां दूसरे पे मत थोपिए. आपको कोई जहर पिला रहा है इसका मतलब ये नहीं आप पीते रहोगे. या आपकी बुद्धि होनी चाहिए, समाज की बुद्धि होनी चाहिए कि हमें समाज को किस तरह रखना है. हमारे हर वर्ग को बराबर से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. ये कहना गलत हो कि हमें वो पिलाते रहे जहर, तो हम जहर पीते रहे बहुत आराम से. राइट? Yes, yes, Sumit. ठीक है सुमित, thank you so much for joining our discussion. Thank you for adding so much to the table.